That is a trial on petrol engine. Now in this practical, we have to conduct a trial for various speed and to determine what is the torque value, what is brake power value, what is fuel consumption, what is thermal efficiency. So likewise, we have to find out some parameters, some efficiencies, some consumption values, and that is our second practical on petrol engine. So we know that how the construction is there. So we have a three-cylinder petrol engine equipped with a hydraulic dynamometer. There is a fuel tank. We have to, this time in this experiment, we have to measure the fuel consumption. So we will mark somewhere, suppose this is the 10 cc fuel consumption. So we will switch our knob towards burette, and when fuel consumption start between this 10 cc, we will note down the time. At the same time, we have to note down the manometer reading. Manometer reading is important to calculate the air flow rate. Fuel consumption rate is calculated to fuel consumption, that is fuel flow rate. Next, we have to calculate torque. For that, we must know the value of engine load and we must know the value of engine speed. But this is not a more states. That means we are not cut off any cylinder. So throughout the experiment, our all cylinder will be working. Okay. So the procedure wise, at the beginning we start our water cooling. Then one water cooling system going to engine, second going to calorimeter, and third connection going to hydraulic dynamometer. We start our engine, petrol engine, all cylinders are working. Then after we try to load, apply the load with the help of hydraulic dynamometer. How it is going to apply it? So we open the opening of that water inlet by using rotating the wheels. So as the water inlet opening increases, so more flow rate will be there and more water will produce more friction, hydraulic friction. So more load will be applied on engine. So we will apply the maximum load condition to engine. Definitely as we increasing load, so engine speed will reduce. So with the help of accelerator knob, we will rotate the accelerator knob, and with the help of this acceleration knob, we will maintain some particular speed. So now in this condition, we are applying maximum load. With the help of acceleration, we maintain some particular speed. Suppose 1200 at the beginning, we maintain 1200 speed with maximum load condition. Suppose maximum load condition is suppose 20 kg. 20 kg we apply. It will shown on this engine load display, and with the help of accelerator we maintain the engine speed 1200. Okay. Now at this time, after 10 minutes, we have to wait for 10 minutes to get it working temperature. Then after we will measure engine load 20, engine speed 1200, then fuel consumption time for 10 cc, and at the same time we will measure manometer readings. So in this experiment we required only these four values: engine speed, engine load, then fuel consumption time for 10 cc, and manometer reading in a water column. In second set, this is the first set reading. Then after, suppose we are taking reading now for 1300. So second set will be 1300 RPM. But this time we are not using accelerator knob. Whatever be the our engine load is there, we are reducing engine load by rotating this dynamometer knob wheel in a opposite direction. So
load applied on engine will reduce, so speed will increase. So we will suppose 1300. So we reduce the load so that we get a 1300 RPM. At this time, we will allow engine to run for 5 or 10 minutes. Then after we will measure fuel consumption rate, that is time for 10 cc, manometer reading, and whatever be the steady engine load there, and engine speed 1300. After that, again we reduce our engine load. As engine load is decreases, speed will increase. So remember, only once we have to operate accelerator knob. Then after only using loading, reducing loading, we are increasing speed. So likewise, we will increase the speed from 1200 RPM, 13, 14, 1500 RPM, and we note down corresponding load, then fuel consumption time for 10 cc and manometer readings. Once all these are ends, so our practical is end. We are not going for more parameters. That means we are not going to check the emissions and all. We are just checking for torque, brake power, brake specific fuel consumption, fuel flow rate, and brake thermal efficiency. Only these 5 parameters we are going to calculate in this experiment. So in short, इंजन को स्टार्ट करेंगे, डायनामोमीटर से आप इंजन को लोड अप्लाई करोगे, वी विल गो फॉर मैक्सिमम लोड कंडीशन. अब जैसे आपने लोड अप्लाई किया तो इंजन की स्पीड कम होती जाएगी, तो हम एक्सेलरेटर नॉब से उसकी स्पीड बढ़ाएंगे. सपोज पहला स्पीड आपने सेट कर दिया 1200, लेकिन 1200 सेट करते ही रीडिंग्स नहीं लेना है आपको, 5 या 10 मिनट उसको 1200 स्पीड पे ही छोड़ देना है ताकि वो उसकी वर्किंग कंडीशन पे आ जाए. तो जब वो वर्किंग टेम्परेचर और बाकी सारे सेटअप वर्किंग यूनिफॉर्म कंडीशन में आ जाएगा स्टेडी स्टेट में, तब हम गिनेंगे कि एक्चुअल में 1200 पे कितना लोड है. सो लोड नोट डाउन किया, स्पीड 1200, उसके बाद 10 सीसी के लिए कितना टाइम लग रहा है कंज्यूम होने के लिए वो एक नोट डाउन कर दिया, और मैनोमीटर पे हमने मैनोमीटर कॉलम कितना डिफरेंस है वो गिन लिया. अब उसके बाद जब हमें सेकंड स्पीड मेंटेन करनी है तो हम एक्सेलरेटर नहीं बढ़ा रहे, हम क्या कर रहे हैं, लोड को कम कर रहे. अब लोड धीरे धीरे कम करेंगे, और सेकंड सपोज हमारा 1300 आरपीएम हमें सेट करना है, तो 1300 आरपीएम आने तक हमने लोड कम किया. देन आफ्टर 5 to 10 मिनट्स वेट फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन. फिर उसके बाद चेक करो अगर 1300 है, सो नोट डाउन व्हाट इज द एग्जैक्ट लोड एट दैट टाइम, 1300 स्पीड, मैनोमीटर रीडिंग, and time for 10 cc. Second set is complete. Now for third set, again reducing load. जैसे जैसे आप लोड रिड्यूस करोगे स्पीड बढ़ते जाएगा. ये हमने डिसाइड किया है 1200, 1300, 14, 15, तो ये 4 सेट बना लेंगे. तो रीडिंग्स में हमें नोट डाउन करना है वेट, स्पीड, मैनोमीटर रीडिंग एंड टाइम फॉर फ्यूल कंजम्पशन. इंजन सेटअप, एक्चुअल सेटअप, तो ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया है. ये हाइड्रोलिक डायनोमीटर है, अगर आपको लोडिंग करना है तो आपको ये व्हील घुमाना पड़ेगा. व्हील घुमाओगे तो इसका जो इनलेट ओपनिंग रॉड जो है वो या तो इन होगा या आउट होगा. एक डायरेक्शन में इन होगा, दूसरे डायरेक्शन में आउट होगा. अगर वो इन होता है तो ओपनिंग को क्लोज करते जाएगा, दैट्स मीन आपका वाटर फ्लो कम होते जाएगा. अगर वो आउट हो रहा है तो वाटर फ्लो बढ़ते जाएगा, तो ज्यादा लोड आएगा क्योंकि ज्यादा हाइड्रोलिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और वो लोड इंजन पे आएगा. अब इंजन की स्पीड रिड्यूस होती है तो आपको एक्सेलरेटर नॉब से उसको सेट करना है, और एक्सेलरेटर नॉब से फर्स्ट टाइम हम सेट करेंगे. उसके बाद जो भी स्पीड हमें कंट्रोल करनी है, सेट करनी है, उसके लिए हम सिर्फ यूज करेंगे डिक्रीज इन लोड. अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल राइटअप में क्या क्या करना है. So this is your sixth practical, trial on petrol engine. Aim क्या है, to conduct a trial on petrol engine to find its torque, brake power, brake specific fuel consumption, and brake thermal efficiency. Some short, in short, very brief about theory part. Precautions क्या क्या होनी चाहिए. So general precautions कि आपका वाटर लेवल होना चाहिए
लुब्रिकेटिंग ऑयल की लेवल मेंटेन होनी चाहिए, कोई भी नॉब या कुछ भी एक्सेलेरेटर पहले से ही any reading, you have to wait for steady state condition, and for that you must run your engine for at least 5 to 10 minutes. Engine specification में so 3 cylinder 4 stroke petrol engine, maximum rated power 27.6 at 5000 rpm, cylinder diameter, cylinder stroke length, connecting rod, compression ratio, orifice diameter and dynamometer arm length. Same engine diagram procedure as I explained right now. अब यहाँ पे क्या क्या नोट डाउन करना है? सो ऑब्जर्वेशन में इट्स डेंसिटी, कैलोरीफिक वैल्यू, कूलिंग वाटर फ्लो रेट, कैलोरीमीटर वाटर फ्लो रेट, रूम टेम्परेचर, room pressure. So obviously we are taking as a atmospheric pressure. Here it is by mistake, it is wrong. So take a atmospheric pressure. Okay, so it must be 0.98 or you can take as a 1 bar. Then universal gas constant 0.287 kilojoule per kg Kelvin and air box orifice diameter 0.03 meter. अब ऑब्जर्वेशन टेबल में हर बैच को प्रैक्टिकल लेते समय ये 4 स्पीड पे तो प्रैक्टिकल लेना है. दैट्स मीन्स 1200 आरपीएम, 1300 आरपीएम, 1400 और 1500 आरपीएम पे आपको नोट डाउन करने. तो फर्स्ट सेट रहेगा जब आपका आरपीएम 1200 है, कितना वेट था डायनोमीटर इन केजी, 10 सीसी खत्म होने के लिए कितना टाइम लगा इन सेकेंड, और मैनोमीटर रीडिंग कितना था वाटर कॉलम में इन टर्म्स ऑफ एमएम. जब आपने स्पीड चेंज की 1300 बाय रिड्यूसिंग लोड, तो वो लोड कितना है, टाइम, मैनोमीटर रीडिंग, फिर 1400, 1500. तो आपको सिर्फ ये 3 चीजें ही नोट डाउन करनी. अब कैलकुलेशन, सैंपल कैलकुलेशन. सैंपल कैलकुलेशन उसे कहते हैं कि हम कोई एक सीरियल नंबर के लिए कैलकुलेट करते हैं और बाकी के लिए नहीं करते. बाकी के लिए नहीं करते मतलब हमें करना होता है रिजल्ट टेबल में डालने के लिए, लेकिन हम वो शो नहीं करते राइटअप. राइटअप में शो करने के लिए हम कोई एक सीरियल नंबर के कैलकुलेशन करके दिखाते हैं. तो सैंपल कैलकुलेशन में टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क इज वेट इंजन लोड मल्टीप्लाई बाय 9.81, क्योंकि इंजन लोड केजी में दिया है, मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफसेट या लीवर आर्म. सो आपको टॉर्क मिल जाएगा. इमेजिन आई एम कैलकुलेटिंग फॉर 1200 आरपीएम. तो 1200 आरपीएम के लिए जो वेट था वो रखा, तो मुझे 1200 आरपीएम पे कितना टॉर्क था वो मिल गया. अब ब्रेक पावर निकालना 1200 आरपीएम पे. सो ब्रेक पावर इज 2 पाई एनटी. सो यहाँ पे एन की वैल्यू 1200 आरपीएम आएगी. टी की वैल्यू जो अभी मैंने प्रीवियसली कैलकुलेट किया वो आएगा. तो आई विल कैलकुलेट ब्रेक पावर इन किलोवाट. सो यूज डिवाइडेड बाय अगेन 1000. फ्यूल कंजम्पशन, तो रिमेंबर फ्यूल कंजम्पशन बेसिक यूनिट होता है, वो होता है पर आवर टाइम पे. सो फ्यूल कंजम्पशन दिखाना है. अब वॉल्यूम फ्लो रेट दिखा रहे हो तो मीटर क्यूब पर आवर्स, अगर मास फ्लो रेट दिखाना है तो इट इज केजी पर आवर. सो वॉल्यूम फ्लो रेट, तो हम 10 सीसी के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, तो 10 सीसी को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. तो 10 सीसी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, विल बिकम मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 3600. तो ये आवर्स कन्वर्ट करने के लिए, और जो भी आपने टाइम नोट डाउन किया है वो यहाँ लिख दो. तो आपने टाइम नोट डाउन जो किया वो सेकंड में किया, तो अगर वो सेकंड वाला टाइम यहाँ रख दोगे और 3600 से मल्टीप्लाई करोगे, तो योर वैल्यू विल बी मीटर क्यूब पर आवर. वंस यू नो व्हाट इज अ वॉल्यूम फ्लो रेट, तो अगर आप उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट अ मास फ्लो रेट. सो आवर यूनिट विल बी केजी पर आवर. उसके बाद ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन. अब ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है? इट इज सिंपली अ रेशियो ऑफ फ्यूल कंजम्पशन पर यूनिट ब्रेक पावर. सो फ्यूल कंजम्पशन तो हमने मास फ्लो रेट निकाला है केजी पर आवर डिवाइडेड बाय ब्रेक पावर. अब ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का स्टैंडर्ड यूनिट होता है केजी पर किलोवाट आवर. सो हमने ऑलरेडी मास फ्लो रेट केजी पर आवर में निकाला है, डिवाइडेड बाय अगर ब्रेक पावर किलोवाट में रखते हो तो ये जो भी वैल्यू आएगा इट इज केजी पर किलोवाट आवर. नेक्स्ट, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी. सो टोटल ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय टोटल हीट जनरेटेड.
So brake power, अब mass flow rate of fuel multiply by calorific value. अब ये परसेंटेज में है, तो डेफिनेटली दोनों के यूनिट बैलेंस होने चाहिए. अगर ब्रेक पावर आपने किलो के टर्म में निकाला है, तो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू भी किलो जूल वाली रहेगी. ब्रेक पावर अगर आप पर किलो वैट बोल रहे हो, दैट्स मीन किलो जूल पर सेकेंड. सो मास फ्लो रेट शुड बी केजी पर सेकेंड में होना चाहिए. सो यू हैव टू बैलेंस द यूनिट. अब इसमें अगर वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो यू गेट हाउ मच इज द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फॉर 1200 आरपीएम. अब ऐसे ही आपको 1300 आरपीएम के लिए कैलकुलेट करना है, लेकिन वो शो नहीं करना है. प्रैक्टिकल राइटअप में किसी एक के लिए ही आपको शो करना है, बाकी के लिए कैलकुलेट करोगे और रिजल्ट टेबल में डायरेक्ट वैल्यूज रख दोगे. सेम वे 1400 आरपीएम के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू लोगे, ये सारा डाटा कैलकुलेट करोगे, यहाँ वैल्यूज रख दोगे. अब इससे होगा क्या, आप यहाँ रिजल्ट टेबल से पता चल जाएगा 1200, 1300, 1400, 1500. जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो जब आप टॉर्क का कॉलम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टॉर्क कम हो रहा है स्पीड के हिसाब से, या ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर ये सेम रह रहा है. तो आपको यहां से ही पता चल जाएगा कि वेदर योर टॉर्क इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रिमेन सेम. ब्रेक पावर भी जब आप ये सारे स्पीड के लिए ब्रेक पावर रख दोगे, तो वहां पर भी पता चल जाएगा ब्रेक पावर की टेंडेंसी क्या है. with speed it is also increasing or it is decreasing or remains same. Fuel consumption, तो जो हमारा लॉजिक है वो ये कहता है कि अगर आप स्पीड बढ़ाते हो, दैट्स मीन एक्सेलरेटर देते हो, तो ऑब्वियसली आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ना चाहिए. तो फ्यूल कंजम्पशन यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखना चाहिए. ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, अब ये आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा. फ्यूल कंजम्पशन नो डाउट इंक्रीज होगा, लेकिन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या है? फ्यूल कंजम्पशन पर ब्रेक पावर. सो इट इज नॉट सिंपली अ फ्यूल कंजम्पशन, इट इज पर यूनिट ब्रेक पावर. तो वहां से आपको ट्रेंड पता चलेगा कि ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन स्पीड के हिसाब से बढ़ता है या डिक्रीज होता है या सेम रहता है. एंड सेम फॉर थर्मल एफिशिएंसी. तो आपको सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, यहां रखना है. शो करते समय कोई एक ही के लिए आपको कैलकुलेट करके दिखाना है. कंक्लूजन लिखते समय, विथ इंक्रीज इन इंजन स्पीड द टॉर्क एंड ब्रेक पावर विल इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन सेम, ये आपको लिखना है. विथ इंक्रीज इन इंजन स्पीड द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम. With increase in engine speed, the rate of fuel consumption will increase, decrease, or remain same. And same for brake specific fuel consumption.